کے آغاز میں عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا دورہ بھارت، بھارتی ہم منصب سے ملاقات کی۔ چین اور بھارت کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین اور بھارت ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھیں، دونوں ملک دشمنی یا خطرے کی نظر سے نہ دیکھیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی گفتگو کہا باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ رواں ہفتے اسلام آباد کا بھی دورہ کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا دورہ بھارت، بھارتی منصب سے ملاقات کی۔ چین اور بھارت کو دو اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین اور بھارت ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھیں، دونوں ملک دشمنی یا خطرے کی نظر سے نہ دیکھیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی گفتگو کہا کہ باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ رواں ہفتے اسلام آباد کا بھی دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات ختم ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ روس یوکرین جنگ رکوا کر رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کا پیوٹن سے 40 منٹ تک فون پر بات چیت ہوئی۔ صدر پیوٹن اور زیلنسکی کے درمیان ملاقات کے انتظامات شروع کر دیے۔ جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ دونوں صدور کی ملاقات کے بعد سفریکی مذاکرات ہوں گے۔ یوکرینی صدر کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کی سفارتی کوشش کے حامی ہے۔ امریکہ سمیت دوست ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا ساتھ دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات ختم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ روس یوکرین جنگ رکوا کر رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کا پیوٹن سے 40 منٹ تک فون پر رابطہ ہوا۔ روس یوکرین جنگ بندی کا چیلنج۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ٹرمپ نے زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ تھما دیا۔ روس سے جنگ ختم ہوگی لیکن ٹائم فریم نہیں دے سکتا۔ روس یوکرین امن معاہدہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے۔ امن کے قیام کے لیے امریکہ روس یوکرین سے مل کر کام کریں گے۔ یوکرین میں جنگ روکنے کا اچھا موقع ہے۔ روسی صدر پیوٹن بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، دیر پا امن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ معاملات ٹھیک رہے تو سہ فریقی میٹنگ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کہا پیوٹن نے یوکرین کی سیکیورٹی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ یوکرین جنگ کا خاتمہ ہو۔ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ پیوٹن زیلنسکی ملاقات کا امکان ہے۔ یوکرینی صدر کا یہ کہنا ہے کہ جنگ میں کافی جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کروانے کا تذکرہ، کہا کہ سب کو صورتحال کا علم ہے، بڑی جنگ رکوائی ہے۔ چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن ہو، سب تجارت کریں۔ چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن ہو اور سب تجارت کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سیکیورٹی گارنٹی کے بعد ہی حقیقی پیش رفت ممکن ہے۔ آج اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی سہ فریقی اجلاس میں گفتگو۔ اطالوی وزیر اعظم نے بات چیت میں کہا کہ اتحادی ممالک مل کر یوکرین میں امن کے لیے سیکیورٹی گارنٹی دیں گے۔ روس یوکرین مذاکرات پوشیدہ رخ کی جانب گامزن ہے۔ صدر فن لینڈ کا اجلاس میں اظہار خیال۔ فرانسیسی صدر کی 4 افریقی اجلاس بلانے کی تجویز۔ اور خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے دوران یوکرین، روس، امریکہ، یورپ سمیت 4 فریقی اجلاس بلانے کا یہ کہا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ سیکیورٹی گارنٹی کا مطلب براعظم یورپ کی بھی سیکیورٹی گارنٹی ہے۔ فرانسیسی صدر کی 4 فریقی اجلاس بلانے کی تجویز۔ خبر ایجنسی کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے دوران یوکرین، روس، امریکہ، یورپ سمیت 4 فریقی اجلاس بلانے کا کہا۔ حماس نے اسرائیل سے مصری جنگ بندی تجویز کی منظوری دے دی۔ حماس 2 مراحل میں اسرائیلی قیدی رہا کرے گی۔ حماس کا اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات بڑھانے پر اتفاق۔ قطر اور مصر نے اسرائیل کو حماس کے سیز فائر موقف سے آگاہ کر دیا۔ مصری جنگ بندی تجویز اسرائیل کو موصول۔ اسرائیل حماس کی سیز فائر آمادگی کے باوجود جنگ بندی جاری رکھنے پر بضد ہے۔ حماس نے اسرائیل سے مصری جنگ بندی تجویز کی منظوری دے دی۔ حماس 2 مراحل میں اسرائیلی قیدی رہا کرے گی۔ حماس کا اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ ناظرین، بادل پھٹنے سے سوابی میں تباہی مچ گئی۔ 15 افراد لقمہ جل بن گئے۔ گدون، سرکوئی، بانڈا میں سیلابی ریلے میں 12 گھر ڈوب گئے۔ متعدد گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں اور چھتوں پر پناہ لیے 70 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ شدید بارش سے مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 4 افراد جان سے گئے، 7 شدید زخمی ہو گئے۔ کرک میں تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلوں سے سڑکیں بند ہو گئیں۔ مختلف مقامات پر زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
कमीशन मालाकन डिवीजन के दफ्तर से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट में सवात में हालिया सैलाब और शदीद बारिशों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर में सैलाबी रेलों बारिशों के बायस 20 अफराद जमहक हुए जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। कुदरती आफत से 51 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 185 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी पानी 163 मवेशियों को भी अपने साथ बहा ले गया जबकि 36 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, 21 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले में 50 गाड़ियां बह गई हैं, 65 सरकारी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं जिन्हें जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी रहा और ख़राब मौसम के बावजूद सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर इमदादी सामान की फराहमी भी जारी, जबकि कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते और बंद रास्तों को खोलने और मुनहदम होने वाले पुलों की बहाली में मसरूफ़ हैं। इमदादी सरगर्मियों का हवाला इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासर अजला में पाक फौज के जवान इमदादी कामों में मगन। गिलगित बल्तिस्तान में भी इमदाद और बहाली के इक़दाम। बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में खराब मौसम और बारिश के बावजूद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते बंद रास्तों को खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ रहे। सैलाब ज़दगान को हेलीकॉप्टर से राशन और दीगर जरूरी सामान पहुँचाया गया। मेडिकल कैंप्स में सैलाब से मुतासरा जख्मियों और मरीजों का इलाज भी जारी है। मकामी लोगों ने पाक फौज की जानिब से इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया का इजहार किया। कहा, हम पाक फौज के जज्बे और खिदमत को दिल से सराहते हैं। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के लिए काम के आगाज पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। कहा, जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कराकरम पर आमदोरफ्त मुतबादिल रास्ते के जरिए बहाल कर दी गई। बाबूसर टॉप शाहराह को भी खोल दिया गया। जगलोट स्कर्दू रोड को अस्तक पुल के अलावा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अस्तक पुल की बहाली के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। दियोसाई रोड और हुंजा रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के इस्लाम मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, हमें मुतासरा लोगों की और मदद और बहाली यकीनी बनानी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर में इमदादी सरगर्मियों के हवाले से आला सतह का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। KP में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मजीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। इजलास को NDMA और वफाकी वज़रा की जानिब से जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि वफाकी व सूबाई हुकूमतों, पाक फौज व दीगर इदारों की जानिब से अब तक मुतासरीन के लिए 456 रिलीफ कैंप्स के क़याम के साथ साथ 400 रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रक पहुँचाए जा रहे हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 126 मिलियन रुपए से जायद के सरकारी व निजी इमलाक के नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मानसून जारी रहेगा। 6 बड़े स्पेल गुजर चुके जबकि मजीद 2 स्पेल मुतवक्को हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद व बहाली यकीनी बनानी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का वक्त है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जाँ बहक होने वाले अफराद के साथ साथ मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम फराहम करेगी। इमदादी अशिया की तकसीम व बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मवासलात और वज़ीर तवानाई को मुतासरा इलाकों में जाकर बहाली ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत की और NDMA को फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा और इमदादी अशिया की मुतासरीन में तकसीम का जामे लाए अमल पेश करने की हिदायत की। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ये कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क को IMF के हवाले कर दिया। IMF से जान छुड़ाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। माजी में वज़ीर आज़म 12 बजे दफ्तर आते थे, 3 बजे चले जाते थे। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ाल्ट की बातें हो रही थी। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। जल्द ही पाकिस्तान में जापान जैसी तरक्की का म्यार हासिल कर लेंगे। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। कहती हैं पाकिस्तान ने मार का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। जापान में मौजूद पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जापान का तरक्की याफ्ता शहर
योकोहामा सनती तरक्की में बेहतरीन मिसाल है। फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पंजाब में सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की के साथ साथ अवामी बहबूद के मंसूबे भी लाने हैं। मुल्क IMF के हवाले कर दिया। अब जिससे जान छुड़ानी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, फैसले करने मुश्किल हो गए, लेकिन फिर भी हर रोज पाकिस्तान में आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है माशाअल्लाह। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज भी दिन रात एक किए हुए। कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे। देखिए, ये वही मुल्क है ना जहाँ लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई थी, दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया था। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। जंग जीतने के बाद तो आपको पाकिस्तान जो भारत से जंग जीता है, जंग जीतने की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको अंदाजा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर लें, इंडेक्स जो है उसका, कि वहाँ पर लोगों को अस्पतालों में ना जाना पड़े, आंखों के इमराज का शिकार ना होना पड़े, सांस के इमराज का शिकार ना होना पड़े। पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ये कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं है, मुल्क अच्छा चल रहा है, मुईशत में बेहतरी आई है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि इंडिया जंगबंदी की ज़ुबानी खिलाफवर्जी कर रहा है। हम अलर्ट हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हमसाया मुल्क के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ईरान ने कहा है कि हमने अपने असली दोस्त को अब पहचाना है। इंडिया के साथ हमारी तरफ से अमन कायम रहेगा। इंडिया ने मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। पासपोर्ट बनाने का निज़ाम भी मरबूत कर दिया है। हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है, मईशत में बेहतरी आ रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अब GDP ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ पूरी तवज्जो दें। लेकिन जंग बंदियों की ज़बानी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम अलर्ट हैं। हम नहीं चाहते, हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से तमाम हमसाया ममालिक के साथ रहा जाए। तो हमारी कोशिश है। इसी तरह ईरान को आपने देखा कि हमारे जो भाईचारा था, जो गर्मजोशी थी, और ज़्यादा मजबूत हो गई है, और उन्होंने कहा कि हमने अपना जो असली दोस्त है, रियल दोस्त है, उसको भी हमने अब पहचाना है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक में हैं। हमारी तरफ से अमन कायम रहेगा, लेकिन अगर कोई भी मैली आंख उठा के कुछ हमारी तरफ देखेगा या हमारे ऊपर कोई एक्शन लेगा, तो उसका जवाब फिर इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा।